Hello everyone. In this part we will discuss about scientific notation and precision and accuracy. So look, first of all scientific notation. So when solving any numericals or anything, we come across many type of decimals or many large numbers also. So we cannot write them exactly, right? Suppose just like the speed of light is how much? 3 into 10 to the power 8, right? The speed of light is the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So why we are writing this in the form of this one? This is what? Scientific notation. Instead of this, what we are supposed to write is 3 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the speed of light in air. So definitely what this one is very convenient to write as compared to this. So this is known as scientific notation. Like here are also many other examples. So let's have a look how they are represented. It is represented in the form n into 10 to the power n, where n, the capital N, vary from 1 to 10 and small n is a positive or negative number. This is a what? Exponent. So look here, this one, this will be represented as how much? 5.0 into 10 to the power minus 3. ये चीज़ याद रखो. Suppose here in this example, what if the decimal point moves towards the right? If the decimal point is moving towards the right, the powers becomes what? Decreasing. Like here suppose 0.00502. So here it will be how much? The decimal point is moving how many place? 1 2 3 place towards the right. Then it will be 5.02 into 10 to the power minus 3. Clear? Just like that, here it is 10 to the power 4. So it will be how much? 3.201007 into 10 to the power 4. Now how can we multiply or divide or add or subtract this number with scientific notation? Have a look here. So first of all, if we have to multiply or divide two numbers with scientific notation, then in case of multiply, that's not a big deal. Just multiply the base of both the numbers and what? Add the powers, और what? Simply multiply the exponent factor also. जैसे कि यहाँ तुम लोग देख सकते हो 1.7 into 10 to the power minus 7 multiplied by 5.9 into 10 to the power 2. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो 1.7 multiplied with 5.9 and this will be what? Into 10 to the power minus 7 plus 2, because यहाँ पे 10 का पावर प्लस 2 है, यहाँ पे 10 का पावर माइनस 7 है. सो ये चीज़ भी तुम लोग जानते होगे. दैट व्हाट एक्सपोनेंस पावर में पढ़े हो, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अगर है, देन इट कैन बी रिटन एज ए टू द पावर m प्लस n. सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड जो आएगा एज ए रिजल्ट उसको भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना होगा. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन दिस केस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज़ और वो क्या है? देखो, द नंबर्स शुड बी व्हाट? सेम एक्सपोनेंट.
दोनों नंबर को, जिस दो नंबर को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दोनों का एक्सपोनेंट सेम होना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 7.25 इंटू 10⁻³ है, यहाँ पे 4.12 इंटू 10⁻⁵। सो दोनों केसेस में एक्सपोनेंट इज डिफरेंट, यहाँ पे 10⁻³ 10⁻⁵। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों का जो एक्सपोनेंट पार्ट है उनको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये -5 है तो इसको करेंगे -3, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो पीछे आएगा, राइट। जैसे कि मान लो ये है कितना 4.12 इंटू 10⁻⁵, ओके, -5 है। तो पहले हमें इसको लाना है, 10⁻⁻ क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो यहाँ पे पक्का क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 100। तो 100 मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक 100 को डिवाइड भी करना होगा, राइट। तो दिस इक्वल्स वी कैन राइट 4.12 बाय 100 इंटू 10⁻⁻3। सो अब ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू, देखो डेसिमल पॉइंट अगर 100 से डिवाइड हो रहा है 2 डिजिट पीछे आएगा लेफ्ट पे, तो हो जाएगा 0.0412 इंटू 10⁻⁻3। समझे ये कैसे हुआ। सो अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं देन द एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम। Now come to significant figure. Before that, let's have an idea about precision and accuracy. So significant figure जानने से पहले ये जानना बहुत ही important होगा कि प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। सो ये पॉइंट्स देखने से पहले एक बार ये देख लो, सपोज हम किसी भी चीज़ पे एम करें, सपोज शूटिंग चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर शूटिंग में हमें एग्जैक्ट आंसर क्या है, मतलब हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ सेंटर पे, राइट। दिस इज द व्हाट आवर एग्जैक्ट पॉइंट, और वी कैन से एग्जैक्ट आंसर, राइट। सो देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बता, ये मान लो एक क्वेश्चन है, उसका एग्जैक्ट आंसर सपोज ये पॉइंट है सेंटर में जो है, तो इसी पे हम देखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है। सपोज तुम 3 बार अटेम्प्ट किए, तीनों टाइम लेट यहाँ पे आया, थर्ड टाइम यहाँ, फिर यहाँ पे, तो इसी एरिया पे आ रहा है। सो योर रिजल्ट इज व्हाट, प्रिसाइज, मतलब राइट तो है नहीं बट तुम्हारा जो एम है वो प्रिसाइज है, दिस इज प्रिसीजन। अगर तीनों अटेम्प्ट में तुम्हारा एम यहीं पे लगता है इसी सेंटर में, देन यू आर एक्यूरेट। समझे, एक्यूरेट मीन क्या, एग्जैक्ट आंसर आना रिपीटेडली, बट प्रिसीजन मीन्स क्या, आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन जो भी एक बार आएगा वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। देन क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, क्लोजनेस मीन्स फॉर द सेम क्वांटिटी ऑल द मेजरमेंट आर क्लोज, बट एक्यूरेसी मीन्स एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो भी ट्रू वैल्यू है उसके साथ पूरा पर्टिकुलर है एक्यूरेसी में, बट प्रिसीजन में ट्रू वैल्यू के साथ पर्टिकुलर नहीं है, देयर इज ओनली क्लोजनेस टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन वैल्यू, एंड दिस वन एक्यूरेसी इज मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। नाउ
हाउ कैन वी कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट वैल्यू, काउंट कैसे करें? देखो, comprise meaningful digit which are known with certainty, indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit. Example, in a result 45.8 centimeter, 45 centimeter and 8 is uncertain. So the uncertainty would be plus minus 1 in the last digit. मतलब ये है लास्ट डिजिट हमारा 0.8 है ना, तो ये हम क्या ले सकते हैं, मे बी 46 हो सकता है या फिर 45 होगा. देन नीचे देखो, इफ नॉट stated then the uncertainty in the last digit is understood as plus minus 1. मीन्स अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ है देन हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या मे बी +1 हो सकता है, मे बी -1 हो सकता है. इतने इस रेंज में वो डिफर करेगा. नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी गिवन नंबर? सो हियर आर सम रूल्स. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे. जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कौन सा है, इस एग्जांपल पे 4 है. 4 से पहले जो 2 जीरो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो दिस 0.04281 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे 4, 2, 8, 1 ये 4 ही होंगे सिग्निफिकेंट फिगर. उससे पहले जो जीरो है वो नहीं है. जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. 2 नॉन जीरो हैं, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 7. उन दोनों के बीच जितने भी जीरो हैं वो सब होंगे सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर. जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी जीरो है ऑल आर सिग्निफिकेंट. यहाँ पे 8300, सो 4. देन काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि मान लो यहाँ पे 25 ले लिए. 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25.00 अनलिमिटेड जीरो. सो दिस हैज व्हाट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? Then how to add or multiply or divide or subtract significant figures, वो भी एक पॉइंट है. देखो, the result must not have more digit to the right of the decimal point than either of the original number. So हम जितने भी नंबर्स को ऐड करेंगे रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट होगा जो कॉमन हो तीनों में. जैसे कि यहाँ पे देखो 5.022, 7.51, 41.3. तो डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. तो जो रिजल्ट आएगा वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेगा. जैसे कि यहाँ पे देखो रिजल्ट तो आ रहा है 53.832, बट हम उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, होगा 53.8, बिकॉज 41 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. सेम चीज अप्लाई होगा सब्सट्रैक्शन में. मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, 1.1 इंटू 2.134, रिजल्ट आ रहा है 2.3474. बट एज 1.1 हैज ओनली 2 significant figure, so the result will be 2.3, not 2.3474. Then come to round up. If greater than 5, increase by 1. जैसे कि मान लो 7.68 डिजिट है, हम इसको लेंगे 8. अगर ये 7.4 होता तो लेंगे 7. और अगर इक्वल है मतलब
7.5 है तो भी हम इसको 8 ही लेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को।